This is Manoj Kumar Megwal. Welcome back to my YouTube channel. Guys, today we are going to study the poem The Solitary Reaper, composed by William Wordsworth, one of the most famous romantic poet. Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, the well profound is overflowing with the sound. No nightingale did ever chaunt more welcome notes to weary bands of some shady haunt among Arabian sands. A voice thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago, or is it some more humble lay, familiar matter of today? Some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again. Whatever the theme, the maiden sang, as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more. Behold her single in the field. The poet says, look at the girl. She is single in the field. Yon solitary highland lass. Yon मतलब that. Solitary highland lass. Highland lass guys, हाईलैंड स्कॉटलैंड का वो पहाड़ी इलाका है जहाँ जहाँ वर्ड्सवर्थ ने अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ एक बार विजिट किया था और लास्ट वहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस में यंग वुमन या गर्ल के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है. Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. She is alone. She is all alone and she is reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. Now the poet says to the readers or someone who is passing from there, either you stop here or gently pass. अगर आप आवाज़ करते हुए निकलोगे तो वो डिस्टर्ब होगी और अपना गाना बंद कर देगी. And the writer, the poet does not want the girl to stop her song. Alone she cuts and binds the grain. वो अकेली है, वो अकेली फसल काटते हैं और उनको बांधते हैं, पुलिंदा बांधते हैं. And sings a melancholy strain. और वो एक उदासी भरा गाना गाती हैं. Oh listen for the well profound. ओ सुनिए, अरे सुनिए, क्योंकि पूरी वैली, वैल मतलब वैली, profound deep valley is overflowing with the sound. पूरी वैली में ये जो डीप वैली है इसमें इस लड़की के जो गाने का जो साउंड है वो तैर रहा है, यानी कि पूरी वैली गाने के साउंड से गुंजायमान हो रखी है. गाइस, मेलेंकली स्ट्रेन मतलब सोरोफुल ट्यून या म्यूजिकल सॉन्ग होता है. नाउ द पोइट कंपेयर्स गर्ल्स सॉन्ग विद नाइटिंगेल, कुक्कू, etc. The poet says, no nightingale did ever chaunt more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. विलियम वर्ड्सवर्थ साहब कहते हैं कि जितना सुंदर ये लड़की गा रहे हैं ना, उतना सुंदर तो अरेबियन सेंट्स में, अरब के जो रेगिस्तान हैं उनमें जो ट्रेवलर यात्रा करते हैं, वेरी बैंड्स मतलब जो थके हुए यात्रियों का जो समूह है, वो नखलिस्तान में यानी ओएसिस जो होते हैं, शेडी प्लेसेस होते हैं जहाँ पानी होता है, छाया होती है, उनके आराम करने की जो जगह होती है ना, जब वो आते हैं तो नाइटिंगेल भी इतने मधुर संगीत में, इतने मधुर गीत में उनका स्वागत नहीं करती जितने मधुर तरीके से ये लड़की से गाना गा रही. नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट मतलब गाना. Weary bands, weary band means the group of travelers. Shady haunt, Nakhlistan या oasis among Arabian sands. Arabian sands.
A voice of thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. Hebrides स्कॉटलैंड में पश्चिम की तरफ अटलांटिक महासागर से लगा हुआ 40 से ज़्यादा द्वीपों की एक चेन चेन समूह है, जो जहाँ पे स्प्रिंग टाइम में कुकू बर्ड जब बोलती है तो पूरे ये जो एरिया है, जो हेब्रिज द्वीप का जो एरिया है, उसकी साइलेंस जो ब्रेक होती है, तो इतना मधुर तो स्प्रिंग टाइम में कुकू बर्ड भी नहीं गाती जितना मधुर ये लड़की गा रही है. विल नोवेल टेल मी व्हाट शी सिंग्स. नाउ द पोएट सेज कि क्या कोई मुझे बताएगा कि वो लड़की क्या गा रही है. द पोएट enjoys the music of the song. He does not know what is the theme of the song. Perhaps the plaintive number flow for old unhappy far off things. प्लेंटिव नंबर फ्लो गाइस मतलब सैड और मॉर्नफुल जो वर्सेस होते हैं, मेलेडी होती है, उनके बारे में उनको कहते हैं. फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, क्या वो दुखी या सैड कोई सॉन्ग है जो गा रही, जो पुराना हो, दर्द भरा हो, और जो फार ऑफ थिंग्स है यानी कि कुछ रिमोट डिस्टेंट इवेंट्स हुई हो, मेमोरीज हो पुराने समय के, उसके बारे में गा रही है. एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, या फिर बहुत पहले जो युद्ध हुए उनके बारे में, युद्ध जो विभीषिका लाया, जो विनाश लाया, उसके बारे में. और इज इट सम मोर हम्बल ले, द पोएट सेज, और इज इट सम मोर हम्बल ले, या फिर ये कोई साधारण या ऑर्डिनरी सॉन्ग है, बैलेड है, रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में, सब नेचुरल सोरो. और इज इट सम मोर हम्बल ले फेमिलियर मैटर्स ऑफ टुडे, या फिर रोज़मर्रा के बारे में कोई साधारण सा कोई गाना है, या फिर सम नेचुरल सोरो लॉस और पेन, या कोई प्राकृतिक दुख, नुकसान या तकलीफ के बारे में, दैट हैज़ बीन, जो कभी आई हो, कभी पुराने समय में आई हो, एंड मे बी अगेन, और जो दोबारा आ सकती हो. तो क्या ये उसके बारे में है. वाट एवर द थीम द मेडन सिंग, नाउ द पोएट सेज, वाट एवर द थीम द मेडन सिंग, इस लड़की के गाने की थीम कुछ भी रही हो, चाहे दर्द रहा हो, दुख रहा हो, युद्ध के बारे में रहा हो, या रोज़मर्रा के जीवन की तकलीफ़ों के बारे में रहा हो, या फिर कोई प्राकृतिक दुख, प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक तकलीफ़ के बारे में रहा हो जो कभी आई हो, दोबारा आने का जिसका डर हो, कुछ भी थीम रही हो, लेकिन एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इसका गाना कभी ख़त्म ही नहीं होगा. आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसको उसके काम करने की जगह पर गाते हुए देखा. यानी द गर्ल वॉज वर्किंग इन हिज फील्ड, इन हर फील्ड, सॉरी, इन हर फील्ड, एंड शी वॉज कटिंग द ग्रेन एंड ओवर द सिकल बैंडिंग, शी वॉज बैंडिंग ओवर द सिकल, सिकल दराती जिसको कहते हैं, जो फसल काटने में या घास काटने में काम आते हैं. आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैं उस लड़की का गाना सुनता हूँ बिल्कुल शांत रह के, बिना हिले डुले, क्योंकि अगर मैं हिलूंगा डुलूंगा तो उस लड़की का ध्यान भटक जाएगा, एंड शी विल स्टॉप सिंगिंग एंड ऑल द फन विल स्पॉइल. एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जब मैं अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ा, माउंटेड अप द हिल, पहाड़ पे चढ़ा, द म्यूजिक इन माई हियर हार्ट आई बोर, तो मैं उस गाने का जो संगीत था ना, अपने दिल में अपने साथ ले गया. लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और जब मैं दूर चला गया, काफ़ी दूर चला गया, पहाड़ के ऊपर चला गया, उसके बाद अब उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी. गाइस, ये जो पोइम थी द सोल्टरी रिवर, ये वर्ड्सवर्थ की जो कविता की जो डेफिनेशन है ना, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द थॉट्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये इसके ऊपर पूरा खरा उतरती है. गाइस, दिस पोएम इज अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इन स्कॉटलैंड. In September 1803, he and his sister Dorothy visited the village of Strathire in Balquhidder parish, where they encountered a girl singing while working in the fields, inspiring the poem's central image. ये उनके जीवन की एक वास्तविक घटना है, जब 1803 में वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन डोरोथी
स्कॉटलैंड में गए थे। ये कविता 1805 में वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने मिलकर एक बुक पब्लिश की थी, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स, इन 1807 में। उसमें ये प्रकाशित हुई थी, एक बैलेड। गाइस, आई होप आपको कविता समझ में आई होगी, और समझ में आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई आपको सुझाव है तो बिल्कुल वेलकम है आपके सुझाव का। कमेंट में ज़रूर बताइए।